ایک وقت تھا جب تین عورتیں تین کہانیاں بڑی مشہور ہوئی تھیں۔ آج میں آپ کو تین مردوں کی ایک کہانی سناؤں گا۔ کہانی پر تو بعد میں آؤں گا، پہلے بتا دوں کہ یہ تین مرد کون ہیں۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور شہباز شریف۔ گزشتہ 40 میں سے 30 سال یہ تین لوگ مختلف ادوار میں پاکستان پر حکومت کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ 1985 میں جب نواز شریف پہلی بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت پاکستان کی فی کس آمدنی انڈیا اور بنگلہ دیش سے زیادہ تھی۔ آج جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو یہ دونوں ممالک ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ فی کس آمدنی میں پاکستان کی رینکنگ 161، بنگلہ دیش 139 اور انڈیا 136 نمبر پر موجود ہے۔ کیا ملک کی اس تنزلی کا ان تین حکمرانوں کی دولت پر کوئی فرق پڑا یا ان کے اثاثے محض حساب کتاب کا ہیر پھیر ہے؟ یہی تو اصل کہانی ہے۔ میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کمنٹری۔ نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف کا رہن سہن ارب پتیوں والا ہے، لیکن دستاویزات میں انہوں نے اپنے آپ کو کروڑ پتی ظاہر کیا ہے۔ البتہ ان تینوں کی اولادیں عملی زندگی میں آنے سے پہلے ہی ارب پتی بن چکی تھیں۔ وہ کیسے؟ اس پر آنے سے پہلے دو مزید حقائق کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ کاغذوں میں کروڑ پتی اور اصل میں ارب پتی ان سیاستدانوں کی عوام سے دوری سمجھنے میں آسانی۔ اپریل 2021 میں اقوام متحدہ نے پاکستان کے بارے میں نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے جاگیردار، سرمایہ دار، سیاستدان اور دیگر طاقتور شخصیات ریاست سے سالانہ 17.4 ارب ڈالر کی معاشی مراعات حاصل کرتے ہیں۔ اس معاشی واردات کو اقوام متحدہ نے 3 P's سے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ 3 P's کیا ہیں؟ پاور، پیپل اینڈ پالیسی۔ کہا گیا کہ پاکستان کی یہ طاقتور اشرافیہ سسٹم میں موجود نقائص، اپنے منظم نیٹ ورکس اور معاشی پالیسیوں کا فائدہ اٹھا کر یہ مراعات حاصل کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تاریخ ہے 13 مارچ 2024۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ جاری ہوتی ہے۔ 193 ممالک میں پاکستان کا نمبر 164 ہے۔ سری لنکا جیسا ڈیفالٹ کرنے والا ملک 78ویں نمبر پر موجود ہے۔ خطے میں پاکستان سے نیچے صرف افغانستان ہے۔ یعنی مختصر الفاظ میں پاکستان کے لوگوں کا معیار زندگی دنیا کے بیشتر ممالک سے نیچے ہے۔ اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان تین حکمران شخصیات کے اثاثوں کی گڑبڑ گھوٹالہ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ سب سے اوپر ہیں میاں نواز شریف، 3 بار وزیر اعظم پاکستان، 2 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور اس وقت حکمران جماعت کے قائد ہیں۔ 2017 میں نواز شریف 1 ارب 85 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے رکھتے تھے، جن میں 7 سالوں کے دوران 1 ارب 77 کروڑ روپے کی حیرت انگیز کمی واقع ہو گئی۔ حالیہ الیکشن میں ان کی جانب سے داخل کیے گئے کاغذات نامزدگی کے مطابق اب ان کی کل دولت صرف 8 کروڑ رہ گئی ہے۔ حالانکہ اس دوران حکومت جانے کے علاوہ کوئی بڑا کاروباری نقصان بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ ہوتا بھی کیسے؟ میاں صاحب نے کھاتوں میں خود کو ایگریکلچرسٹ ظاہر کیا ہے اور صرف 2-3 اکاؤنٹنگ انٹریز سے ارب پتی سٹیٹس سے گر کر کروڑ پتیوں کی لسٹ میں آ گئے۔ اگر یہی رفتار رہی تو 2 سال بعد لکھ پتیوں کی فہرست میں بھی آ جائیں۔ چند اکاؤنٹنگ ایرر سے یہ کیسے ممکن ہوا، پہلے یہ جانتے ہیں۔ 2017 کے اثاثوں میں میاں صاحب نے 1 ارب روپے مالیت کی 940 کنال زمین ظاہر کی تھی، جو اب ان کے نام پر موجود نہیں ہے۔ اس طرح گزشتہ گوشواروں میں بیٹے حسین نواز سے لیے گئے تقریباً 23 کروڑ روپے مالیت کے گفٹس بھی سٹیٹمنٹ سے نکل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کلثوم نواز کے نام 20 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے بھی نکل گئے ہیں۔ صرف ان 3 اکاؤنٹنگ ایڈجسٹمنٹ سے ان کے اثاثوں میں 1 ارب 43 کروڑ روپے کمی آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ اثاثے گئے کہاں؟ اس کا جواب تو شریف فیملی ہی دے سکتی ہے، لیکن ماضی کا پیٹرن دیکھیں تو جس طرح میاں صاحب نے اپنے اکثر اثاثوں کو وراثت، گفٹس اور بچوں سے قرض کی صورت میں ظاہر کیا تھا، اس طرح شاید یہ اگلی نسل کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ اس کے شواہد اس بات سے بھی ملتے ہیں کہ 2013 میں مریم نواز نے ایک ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ملک کے اندر یا باہر کوئی جائیداد نہیں، لیکن حالیہ الیکشن میں ان کی جانب سے جمع کیے گئے کاغذات نامزدگی کے مطابق وہ ارب پتی بننے کے قریب ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ان کے اثاثوں کی مالیت 85 کروڑ روپے سے زائد ہو چکی ہے، جس میں 84 کروڑ روپے مالیت کی
1500 कनाल ज़रई अराजी जाहिर की गई है। गुज़श्ता 3 सालों में मियां नवाज शरीफ ने कुल 8,200 रुपए इनकम टैक्स दिया, जबकि इसी अरसे के दौरान ज़रई टैक्स की मद में 7,21,122 रुपए अदा किए गए। टैक्स से बचने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी भी एक मिसाल मरियम नवाज के गोशवारों में मौजूद है। मरियम नवाज ने स्विफ्ट एनर्जी नामी कंपनी को दिया गया 67,50,000 रुपए का कर्ज जाहिर किया, जिसके बदले में 17,60,000 का टैक्स रिफंड हासिल किया। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने भाई हसन नवाज से 2,79,00,000 रुपए का कर्ज भी शो किया, जो मरियम नवाज के गोशवारों में लायबिलिटी और हसन नवाज के खातों में रिसीवेबल के तौर पर जाहिर हो गया। इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से ये पैसा सिर्फ खातों में जाहिर हो गया। याद रहे कि ऐसे ही रिसीवेबल की बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहली की सजा भी हो चुकी है। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंटेड असासों की। अब आते हैं कुछ मखसूस इल्जामात की जानिब जो मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ फैमिली पर लगते आए हैं, जिनका कोई वाज़ेह जवाब अब तक नहीं दिया गया। 2005 में रेमंड बेकर की किताब कैपिटलिज्म्स एचलेस हील शाया हुई, जिसमें शरीफ फैमिली पर करप्शन और किकबैक्स के संगीन इल्जामात लगाए गए। इस किताब में साबिक डायरेक्टर FIA रहमान मलिक की तहकीकात का हवाला देकर कहा गया कि शरीफ फैमिली ने मोटरवे के ठेके में $16 करोड़ कमीशन लिया, कौमी बैंकों से $14 करोड़ के इनसिक्योर्ड कर्जे लिए, $6 करोड़ चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत देकर हासिल किए, जबकि $5.8 करोड़ अमेरिका और कनाडा से महंगी गंदम इंपोर्ट करके कमाए। मजमूई तौर पर यह रकम $42 करोड़ बनती है, जो मौजूदा करेंसी के हिसाब से 117 अरब रुपए बनते हैं। इन्हीं में से कुछ इल्जामात को हुदैबिया केस का हिस्सा बनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर शरीफ फैमिली को रिलीफ दिया। जब पनामा पेपर्स का मुकदमा कायम हुआ तो जून 2018 में बरतानवी अखबार डेली मेल में पेंट हाउस पायरेट्स की हेडलाइन के साथ एक खबर शाया, जिसके मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ और उनकी औलाद की 21 प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी मालियत 3.2 करोड़ पाउंड है, जिसमें से एवन फील्ड 1993 में खरीदा गया। इसी खबर में यह भी बताया गया कि वन हाइड पार्क में हसन नवाज ने एक प्रॉपर्टी 4.3 करोड़ पाउंड में फरोख्त करके हैंडसम मुनाफा कमाया। याद रहे कि वन हाइड पार्क मलिक रियाज ने खरीदी थी, जिसकी ट्रांजैक्शन को बरतानवी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग करार देकर पैसा पाकिस्तान को वापस करने का हुक्म जारी किया था। इस पैसे को मलिक रियाज पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद किए गए जुर्माने में एडजस्ट करने पर इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस का सामना भी कर रहे हैं। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ फैमिली का बैरून मुल्क बिजनेस और प्रॉपर्टी ज्यादातर उनके 2 बच्चों के नाम पर है, जो बरतानिया के शहरी हैं। पनामा केस में नवाज शरीफ की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके बेटों को दादा की तरफ से सीड मनी दी गई, जिसका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बरक्स पनामा पेपर्स में इंकशाफ किया गया कि 2 ऑफशोर कंपनियां नेल्सन और नेक्सन 1993-94 में रजिस्टर्ड की गई, जिनकी मालिक मरियम नवाज थी। उस वक्त उनकी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी। 1999 में BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में हसन नवाज ने कहा कि वो लंदन के फ्लैट में किराए पर रहते हैं, जिसका किराया वालिदैन की तरफ से भेजा जाता है। लेकिन 2017 में हुसैन नवाज ने इन फ्लैट्स की ओनरशिप कबूल कर ली और मरियम नवाज को ट्रस्टी जाहिर किया। इतनी कम उम्री में इनके नाम इतनी महंगी प्रॉपर्टीज किसने खरीदी, इसका तसल्ली बख्श जवाब किसी के पास नहीं। अलबत्ता पावर डील्स की वजह से रियासती प्रोसिक्यूशन इन केसेस में ढीली पड़ गई और तमाम इल्जामात से बरीयत मिल चुकी है। ब्राइटर पाकिस्तान की रैंकिंग के मुताबिक नवाज शरीफ की वर्थ $1.8 अरब है, लेकिन दस्तावेजात में इसका कोई सबूत नहीं है। अब बारी आती है आसिफ अली जरदारी की। हाल ही में दूसरी बार पाकिस्तान की सदारत के मनसब पर फाइज हुए हैं। सदर बनते ही आसिफ जरदारी ने तनख्वाह न लेने का ऐलान किया, जो काबिल तारीफ है, लेकिन उन पर लगे इल्जामात इससे कहीं ज्यादा संगीन है। इन इल्जामात का पोस्टमार्टम करने से पहले आसिफ जरदारी के डॉक्यूमेंटेड असासों का जायजा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक आसिफ जरदारी के असासों की मालियत 71 करोड़ 42 लाख रुपए है। पाकिस्तान में उनकी 20 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 5 विरासत में मिली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफ जरदारी के पास 1 करोड़ 66 लाख रुपए का असलहा है और उनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। वो 6 गाड़ियों के मालिक हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी की असासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़ रुपए है। तो पाकिस्तान में 19 जायदादों के मालिक हैं और उनके 7 बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि उनके पास 6 करोड़ से जायद कैश पड़ा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के पास बैरून मुल्क 150 तोला सोना
और 7 घड़ियां हैं। उन्होंने दुबई में सरमाया कारी भी कर रखी है। वो दुबई में 2 जायदादों के मालिक भी हैं। तफसीलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो के तमाम असासे विरासत में या वालिदैन से तोहफों की सूरत में मिले हैं। जहां बिलावल भुट्टो के असासे वालिद से ज्यादा हैं, वहीं उनकी आमदनी वालिद से कहीं कम है। 2022 में पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी शाया की गई, जिसमें 2019 की टैक्स तफसीलात है। यह भी बताता चलूं कि 2019 के बाद पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स मालूमात अब तक जारी नहीं की गई। हालांकि ये मामला कई बार काबीना में भी आया है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि अशराफिया शफाफियत के मामले में कितनी हसास है। बहरहाल आखिरी जारी करदा टैक्स डायरेक्टरी में बताया गया कि आसिफ जरदारी की सालाना इनकम 28 करोड़ 26 लाख रुपए थी और उन्होंने 22 लाख 18 हजार रुपए टैक्स दिया, जबकि बिलावल भुट्टो की 2019 की आमदनी 3 करोड़ 81 लाख रुपए थी और बिलावल ने 5 लाख 35 हजार टैक्स दिया। सवाल उठता है कि बिलावल के असासे वालिद से ज्यादा हैं, लेकिन टैक्स कम क्यों? इसका जवाब यह है कि बिलावल के असासे मुल्क से बाहर हैं और उनको गिफ्ट या विरासत में मिले हैं, जिनमें ज्यादातर वालिदैन की जानिब से मौसूल हुए। लेकिन क्या ये तोहफे कानूनी जराए से हासिल किए गए पैसे से खरीदे गए? इस हवाले से अबहाम बरकरार है। हाल ही में होने वाली दुबई लीक्स ने मजीद सवाल भी खड़े कर दिए, जिसके मुताबिक आसिफ जरदारी के तीनों बच्चे दुबई में मुश्तरका तौर पर 2 अपार्टमेंट्स के मालिक हैं, जबकि बख्तावर भुट्टो के पास अलग से 23 मरीना जैसे लग्जरी इलाके में 4 बेडरूम्स का पेंट हाउस है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम के मुताबिक यह प्रॉपर्टी 2014 में 31 लाख 30 हजार डॉलर में खरीदी गई। आसिफ जरदारी पर कायम जाली अकाउंट्स केस में भी इस प्रॉपर्टी का रेफरेंस मौजूद है, जिसका ताल्लुक 29 मशकूक अकाउंट से था, जिनके जरिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया था। दौर अखबार की 15 मई 2024 की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी ने 2014 के गोशवारों में 23 मरीना जायदाद को तोहफे के तौर पर जाहिर किया। ये तोहफा किसने दिया? तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक उम्मी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद ने 2014 के टैक्स गोशवारों में 23 मरीना की मालियत के बराबर रकम दिए गए तोहफे की मद में जाहिर। दुबई लीक्स में अब्दुल गनी मजीद का 5 बेडरूम्स का एक बंगला भी मौजूद है, जो 2014 में ही खरीदा गया था। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस से जुड़े मजीद 2 लोगों के नाम भी दुबई लीक्स में आए हैं। उनमें गुलाम अब्बास जरदारी और हामिद समो शामिल हैं, जिनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज 2014 और 2019 में 32.5 लाख डॉलर के एवज खरीदी गई। जाली अकाउंट्स JIT के मुताबिक गुलाम अब्बास और हामिद समो ड्राइवर्स हैं, जिनका अपना कोई जरिया आमदन ही नहीं। अगर आसिफ जरदारी के दीगर मुबैना असासों की बात करें तो रेमंड बेकर ने अपनी किताब में लिखा है कि 1988 में फ्रंटमैनों के नाम पर आसिफ जरदारी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के तहत कौमी बैंकों से बगैर किसी कोलेट्रल के 42 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिससे 3 शुगर मिल्स फ्रंटमैनों के नाम पर खरीदी गई। 4 करोड़ का कमीशन स्टील मिल्स के ठेकों से हासिल किया। 1984 में SGS कोटेक्लर कंपनी को दिए गए ठेके में कमीशन लेने का इल्जाम लगा, जिसके बदले में कंपनी ने $12 मिलियन की रकम स्विस अकाउंट में ट्रांसफर की। 1994 में यह इल्जाम भी लगा कि पोलैंड से मंगवाए गए ट्रैक्टर्स में आसिफ जरदारी ने 7% कमीशन लिया, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को 1.7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रेमंड बेकर के मुताबिक मिराज तैयारों की डील में भी $200 मिलियन का कमीशन हासिल किया गया। इसके अलावा गोल्ड केस में $10 मिलियन के कमीशन का इल्जाम लगा। ये तमाम केसेस नैब के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिसके नतीजे में 2003 में स्विस अदालत ने बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी से जुड़े 17 बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के अहकाम दिए, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने NRO के जरिए एमनेस्टी दे दी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने NRO को कलअदम करार दे दिया, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान थे। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने तौहीन अदालत की सजा कबूल कर ली, लेकिन स्विस अदालत को केसेस बहाल करने के लिए खत नहीं लिखा। फिर जब खत लिखा गया तो केस टाइम बार्ड हो चुका था। कानूनी दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ जरदारी करोड़पति है, लेकिन ब्राइटर पाकिस्तान के मुताबिक उनकी दौलत 1.8 अरब डॉलर है, लेकिन कानूनी दस्तावेजात किसी के पास नहीं। सब कुछ मुबैना या बेनामीदारों के जरिए चलता है। अब बारी आती है शहबाज शरीफ की। दूसरी बार मुल्क के वजीर आजम बने हैं। इससे पहले 3 बार वजीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। शहबाज शरीफ ने भी ऐलान कर रखा है कि बैरूनी दौरों पर होने वाले इखराजात वो अपनी जेब से अदा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कानूनी दस्तावेजात में उनकी जेब कितनी भारी है। 2022 में इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ के असासों की फहरिस्त जारी, जिसके मुताबिक उनके कुल असासों की मालियत 26 करोड़ 60 लाख रुपए है, जिसमें से 13 करोड़ की प्रॉपर्टीज लंदन में है।
पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज में नुमाया लाहौर और शेखुपुरा की ज़रई ज़मीन है जो उन्हें विरासत में मिली। इसके साथ साथ मां की जानिब से तोहफे में मिली जमीन भी जाहिर की गई है, गाड़ियां भी गिफ्टेड हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर्स हैं जो वालिद की तरफ से मिले हैं। अपना कुछ भी नहीं सिवाय कर्ज के, जो 14 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जिसके बाद उनकी नेटवर्थ 13 करोड़ रुपए से भी कम रह जाती है। ये कर्जा किससे लिया? सबसे बड़ा लेंडर उनका अपना बेटा सलमान शहबाज है, जिससे तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख का कर्ज लिया गया। इससे पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज के असासों में भी इस पैटर्न की वजाहत हो चुकी है। गौर करने की बात यह है कि फैमिली के उस शख्स से कर्ज लिया जाता है जो सियासत में नहीं होता। सलमान शहबाज ने सिर्फ वालिद को ही कर्ज नहीं दिया, बल्कि अपने भाई और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को भी 3 करोड़ रुपए मालियत की जमीन तोहफे में दी है। शहबाज शरीफ से ज्यादा दौलत उनकी पहली बेगम नुसरत शहबाज के पास है, जो 23 करोड़ के असासों की मालिक है। टैक्स अदायगियों के हवाले से आखिरी बार शाया की गई पार्लिमानी डायरेक्टरी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 2019 में 82 लाख रुपए टैक्स दिया, जबकि इस दौरान उनकी आमदनी 5 करोड़ 63 लाख रुपए थी। अब आते हैं उन इल्जामात की जानिब जिनका सामना शहबाज शरीफ की फैमिली को रहा है। 90 की दिहाई में हुदैबिया मिल्स के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा, जिसमें नवाज शरीफ की फैमिली के साथ साथ शहबाज शरीफ की फैमिली को भी शरीक मुल्जिम बनाया गया। इल्जाम था कि 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम टीटीज के जरिए मनी लॉन्डर की गई। 2014 में इस केस से बरियत मिली। 2020 में इसी नौयत का दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया, बेटों और बेटी के खिलाफ दायर हुआ, जिसमें इल्जाम था कि शहबाज फैमिली ने जाली अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 2023 में जब शहबाज शरीफ वजीर आजम के मनसब पर फाइज थे तो नैब ने इल्जाम वापस ले लिया। इससे पहले 2022 में FIA की जानिब से दायर करदा रेफरेंस को भी खुसूसी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उस वक्त FIA के इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रिजवान की पुरस्रार मौत को लेकर भी शोर उठा था। डॉक्टर रिजवान को FIA ने इस केस से अलग कर दिया था। इस केस का एक और अहम किरदार मकसूद चपड़ासी के नाम से मशहूर हुआ। मलिक मकसूद भी दुबई में पुरस्रार अंदाज में इंतकाल कर गया था। तारीख बताती है कि सियासतदानों के खिलाफ आज तक कोई केस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। पावर डील्स में करप्शन इल्जामात पीछे रह जाते हैं। अलबत्ता तोहफों, कर्जों और बेनामी दारों से इबारत इस कहानी में एक चीज वाज़ेह है कि गरीब कौम के इन अमीर नुमाइंदों का रहन सहन जाहिर किए गए असासों से हरगिज मैच नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें और आजाद डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।